Prime time, first the headlines. US President Joe Biden highlighted that he hopes that there will be a ceasefire in the Israel-Hamas conflict by next Monday, while adding that we are close to it but it's not done yet, he said. The Enforcement Directorate on Tuesday sent the 8th summon to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal a day after he skipped the 7th one in the excise policy-linked money laundering case. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday reviewed the progress of the Gaganyaan mission and bestowed astronauts' wings to the astronaut designates. The Supreme Court on Tuesday restrained Patanjali Ayurveda Limited from advertising its medicinal products and issued a contempt of court notice to its managing director Acharya Balakrishna for violating the November order. Those were the top headlines, and now for the news in details. The Enforcement Directorate on Tuesday sent the 8th summon to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal a day after he skipped the 7th one. Kejriwal on Monday skipped the ED's 7th summons for questioning in the excise policy-linked money laundering case. Earlier, the probe agency sent a 7th summon to Kejriwal on February 22 after the Delhi CM did not appear before the probe agency on the 6th summons for questioning in a money laundering case. The Aam Aadmi Party had skipped all 7 summons and irked with Kejriwal's non-cooperation, the probe agency moved to court. Kejriwal on every occasion after getting the summons termed it as illegal notice, saying that the matter of the validity of the ED summons was in court. Instead of sending summons again and again, ED should wait for the court's decision, AAP said. A Delhi court last week has asked Kejriwal to appear before it on February 17th, acting on a complaint filed by the ED for disobeying ED summons in this case, and noted that the prima facie for the AAP chief was legally bound to comply. The former Indian Revenue Service officer was earlier called on dates like February 26, February 19th, February 2, January 18th and January 3 this year, and December 21st and November 2 in 2023. According to the probe agencies, the Delhi government's excise policy for 2021 to 2022 to grant license to liquor traders allowed cartelization and favoured certain dealers who had allegedly paid bribes for it, a charge repeatedly refuted by the AAP. The policy was scrapped after Delhi LG VK Saxena in July 2022 recommended a CBI probe into alleged irregularities and lapses in its implementation. After the CBI, the ED also registered a case under the Prevention of Money Laundering Act in the matter. The father of UP paper leak case accused has stated that he will not support wrong and that his son Neeraj, who shared answers to the exam questions through WhatsApp, should be sentenced to death. He also said that they are no longer his guardians and they do not have a reputation anymore. It may be mentioned that Neeraj Yadav, a police recruitment candidate, was arrested after being caught for cheating during the exam's second shift at City Modern Academy School in Krishna Nagar, Lucknow. The STF revealed that Neeraj had also sent answers to the other candidates through WhatsApp. बेटा है, बेटा वैसा मर जाए। हाँ, ना कोई मतलब नहीं। क्या करेंगे? गलत का सपोर्ट नहीं करेंगे ना। नकल किया, गया चूल्हा भाड़ में, हम क्या करेंगे? आपके 3 बेटे हैं? हाँ, 3 बेटे हैं। एक बेटा को जानेंगे कि मर गया सारा, नहीं है। फांसी हो जाए, मर जाए, क्या मतलब है? हम गार्जियन अब उनके नहीं है, तो वही समाज में तो जाना तो चला गया। बलिया में जो पेपर लीक का जो मामला सामने आया, बलिया का वो अपराधी है, कहाँ का रहने वाला है और क्या उसके रिकॉर्ड है और किस तरह की क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी? ये पुलिस आरक्षी भर्ती का जो अभी परीक्षा हुई थी, उसमें STF के द्वारा एक अभियुक्त है नीरज यादव, उसकी गिरफ्तारी की गई है। ये जो अभियुक्त है ये मूल रूप से बलिया का रहने वाला है। तो इसके बारे में जो अभी तक जानकारी मिली है, तो ये एक फ्रॉड टाइप का व्यक्ति है और ये अपने गांव में, जो कि थाना हल्दी में गायघाट गांव है, वहाँ का रहने वाला है। वहाँ पर भी लोगों को ये बताता था झूठ कि हम मर्चेंट नेवी में हैं, हम यहाँ नौकरी करते हैं, और ज़्यादातर ये बलिया से बाहर ही रहता था।
तो इसको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। बाकी इसकी अभी क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोग निकलवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्रिमिनल हिस्ट्री प्रकाश में नहीं आई है। इसके साथ ही जो बलिया में हम लोगों ने 11 अभियोग पंजीकृत किए थे, इसी परिप्रेक्ष्य में 23 मुलजिमों को हम लोगों ने जेल भेजा था, उनसे भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि उनसे इस व्यक्ति का कोई लिंकेज तो नहीं। अगर कोई लिंकेज होगा तो उस पर हम लोग उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। जेल में पुलिस की टीम जाएगी सर जांच करने के लिए? हाँ, वो हम लोग जो जेल में नियुक्त हैं उनसे हम लोग माननीय न्यायालय से परमिशन लेकर के उनसे पूछताछ करें। That was on the UP Police exam paper leak case. The National Students Union of India on Tuesday attempted to gherao UP Assembly, however were stopped by the state police. The NSUI workers were demanding the Yogi government to conduct the UPP exam before the Lok Sabha elections. All the protesters who marched from Congress office to the state assembly were detained by the police and taken to Eco Garden through a bus. देश पे मिटने वाला, समाज पे मिटने वाला क्रांतिकारी जितेंद्र मिर्जापुरी कभी, और ये जो यूपी पुलिस की परीक्षा है लोकसभा चुनाव से पहले हो, ये है एन दिखाओ एन। ये तो है सभी जवानों के लिए, एनएसयूआई के लिए और यूपी के जो युवा हैं उनके लिए सुखों की छवि। ये होना चाहिए, तब कहना है कि आवाज गूंज उठे गांव शहर गलियारों से, अब डरो मत देश के गद्दारों से। अन्याय के अंधेरे को चीर के न्याय की मसाल जलाएंगे, न्याय का हक मिलने तक लड़ते ही जाएंगे। जिसे मिला नहीं कभी न्याय, जिसे वक्त रहा तड़पाए, जिसे मिला नहीं कभी न्याय, जिसे वक्त रहा तड़पाए, और राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा बनेगी उसका सदा सहाय। तुम आईडी लगाओ, हम लगाए हैं, आवाज आ रही है मेरे। हलवल हटाओ। हमारे से इतनी सी मांग है यूपी सरकार से कि परीक्षा 15 दिन में दोबारा कराई जाए यूपी पुलिस की और आरओ की, और जिन छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है उस छात्री को हमें दिया जाए। हम गरीब खानदान से आने वाले बच्चे हैं, अगर हमारे साथ ये सरकार ऐसा करेगी तो ये हम नहीं सहेंगे। मैं पूरे देश में बताना चाहता हूँ कि हम छात्रों के साथ क्या हो रहा है। आपने हालत देखी हमारी, हमारे साथ क्या किया जा रहा है, कैसे पुलिस प्रशासन हमारे साथ। आप लोग की मांगे पूरी हो गई थी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मांग क्या है? मांग 6 महीने बाद पेपर कराएंगे। अरे सर भरोसा नहीं है हमें, 6 महीने बाद इनकी सरकार बनेगी, पेपर फिर रद्द करवा देंगे। हमें भरोसा नहीं, हमें 15 दिन में पेपर वापस चाहिए। नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम शोएब बलिया, मैंने विश्वविद्यालय से हूँ और हमारा दर्द ये सरकार नहीं समझ रही है, यही समझाने के लिए हम रोड पर उतरे हैं। We'll now take a short break. We'll be back with more news. In choosing a safe and healthy diet,
it is important to know how to understand food levels and what information you must look for. First of all, we should check logos on the packets. It is most important to see the FSSAI logo and license numbers. This means that a license or registration has been obtained from FSSAI, that is, Food Safety and Standards Authority of India, to make this food or beverages. Look for ISI marks on packaged drinking water containing added minerals and also on some processed foods such as baby diet milk and skim milk powder. Look for egg mark logo on all agricultural products like vegetable oils, pulses, cereals, spices, honey, fruits and vegetables. Look for a green point or brown triangle to see if the food is vegetarian. Green point means the substance is completely vegetarian. Brown triangle means food is non-vegetarian. That is, it contains eggs, meat, fish, etc. When buying rice, flour, oil, milk and salt, give priority to foods that have a +F logo. It means these foods are fortified. Fortified means that the essential nutrients, vitamins and minerals are added to this food in regular quantities, which are essential for your health. They increase the strength of your body and mind and give it the strength to fight diseases. More information about fortified foods is available on ffrc.fssai.gov.in, issued in public interest by Food Safety and Standards Authority of India. Welcome back. Heading on to the next news. Cabinet Minister of Uttar Pradesh Sanjay Nishat on Tuesday inaugurated a regional fishermen welfare convention and flagged off the distribution of vehicles projects to beneficiaries under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Through this scheme, fishermen of UP will be given loans without any interest. Thousands of Nishat party workers were present at the event. प्रदेश स्तर के मछुआ के कल्याण का एक सम्मेलन था। आज मछुआ कल्याण कोष के में जो हमारी परियोजनाएं हैं, जिसमें कल आवास है, मैरिज हॉल है, उनके लड़कियों की शादी है, विधवाओं के वृद्धाओं के लिए बच्चों की कोचिंग है, फीस है और उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए है, दैविक आपदाओं के लिए महिला सशक्तिकरण न्याय, भगवान निषाद राज के महाराजा गुरुराज निषाद की माता सुकेता के नाम महिला सशक्तिकरण के लिए परियोजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो लाभार्थी थे उन्हें आज उनके चेक दिए गए हैं, उन्हें लाभार्थी कुछ उत्कृष्ट किसान थे उन्हें हम लोगों ने इनाम दिया है। मुख्यमंत्री संपदा योजना में थे, निषाद राजकोट योजना हमारी है। तो जो विभिन्न योजनाओं में है, किसान क्रेडिट कार्ड, जो बेचारे कमजोर किसान हैं, पैसा नहीं था तो केंद्र सरकार से 3% का उनको ब्याज माफ है 7% में। और आज मैंने घोषणा की है कि अब मार्च के बाद हम एक नियम लाने जा रहे हैं कि जो 4% ब्याज है वो भी हम माफ कर देंगे। 0% ब्याज पर उत्तर प्रदेश के मत्स्यपालकों को ऋण मिलेगा, सहायता मिलेगी। अब जो 40% अनुदान को लगाना था 60 में, वो हमारे इस ऋण से किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर बड़ी बड़ी परियोजना ले सकते हैं। जैसे 6.5 करोड़ की मिल है, 3 करोड़ 90 लाख उसमें सब्सिडी है, 2 करोड़ की मिल है तो 1,20,000 महिलाओं को है, 1 लाख की मिल, 1 करोड़ की मिल है तो 60 लाख महिलाओं के पुरुष है, पुरुषों को 40% है, महिलाओं को 80 को 60% है। उसी तरीके से RAS है और आज उनके माध्यम से बताना था तमाम किस तरीके से प्रधानमंत्री ने इसके लिए 41 करोड़ रुपया दिया पूरे देश के मछुआरों के। मुख्यमंत्री ने अभी निषाद राजकोट योजना में पैसा दिया, हमारा बजट जो है दुगुना हो गया है, 400 करोड़ रुपए का हो गया। अब आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इससे मत्स्यपालकों को प्रदेश भर को एक दूसरे के साथ मिलकर जो अच्छे मत्स्यपालक थे उनका प्रेजेंटेशन था कि उनके अंदर विकास की धारा में आ जाए, रोजगार लें और बढ़िया से व्यापार करें। हमारे विभाग से इंटीग्रेशन कराना था कि कम से कम हमारा विभाग जो ट्रेंड है वो जाके ट्रेनिंग करे, उनसे सहायता ले, परंपरागत पेशा छोड़ दे और जो है नई टेक्नोलॉजी से करें। और इनको धन्यवाद देना था इन्हीं मत्स्यपालकों के विकास और काम ठीक से करने से आज के दिन में 2 साल हुआ मंत्रालय उत्तर प्रदेश मत्स्य उत्पादन में सर्वोत्तम प्रदेश का
खिताब मिला है, उन्हें धन्यवाद देना था कि आपकी सहायता से हमें, और आधे अधिकारी कर्मचारी हमारे रिटायर्ड हो गए, आधे हैं, इन्हें भी अनुशासन सिखाना था कि ये गरीब हैं, इनका सहायता किया जाए, अंग्रेजों के द्वारा उजाड़े गए हैं, जरूरतमंद हैं, पहले गरीबों को योजनाएं दी जाएं, फिर बड़े लोगों को दी जाए। तो ये सारा उनके साथ था, और इसके मानदेय आज का सब अधिकारी थे। आज के दिन में सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना था कि कम से कम आपने उत्तर प्रदेश को मत्स्य विभाग को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में जो भूमिका निभा रही, उसके लिए आज का ये सम्मेलन था। और उसमें फेडरेशन के हमारे चेयरमैन साहनी जी थे, हमारे एस रजनीश जी थे, डायरेक्टर हमारे NS रहमानी थे, हमारे सभी डिप्टी डायरेक्टर, सभी ADF और सभी मत्स्य पालक आए हुए थे। और इसीलिए आज के दिन में इस मत्स्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय से अलग होने की जो उपलब्धि थी, उसे हम लोगों ने धन्यवाद दिया। जो GDP ग्रोथ में हमारा ग्रोथ 20% का है, ये बताना था कि इतना ग्रोथ किसी भी और क्षेत्र में नहीं, इसलिए मत्स्य में आइए, अपना भविष्य बनाइए। At least 6 people, including 2 children, were killed while several others suffered injuries when 2 jeeps collided with a pickup van in the Baria district area under same police station in Baila district in the wee hours of Tuesday. SP Balia Dev Ranjan Verma said that after attending a pre-marriage function, members of the family were returning home from 2 jeeps. When these vehicles reached near Haldi Baria border after 3:30 AM, they collided with a pickup van. Locals and police immediately reached the spot to rescue injured persons. Verma said that 6 people died in the accidents while other injured persons were admitted to the district hospital. People with serious injuries were referred to Varanasi. He added, meanwhile, UP Chief Minister Yogi Adityanath expressed grief over the Balia accident and extended condolences to the bereaved family members of the deceased. In a post on X, the Chief Minister instructed the officials to speed up the relief work and provided proper treatment to the injured and prayed for the speedy recovery of the injured. The official handle of the CM office on X wrote, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath ji has expressed deep grief over the loss of the lives in the road accident in Balia district. एक्सीडेंट हो गया पिकअप से। कितनी गाड़ियाँ थीं, कितने लोग थे आप लोग सवार? हम लोग सवार एक गाड़ी में 10-12 आदमी एक गाड़ी में थे। कहाँ ये दुर्घटना हुआ है? दूबे छपरा सुबह छपरा के बीच में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग पूरा से भगवानपुर जा रहे थे जी। तो कैसा कार्यक्रम था? कार्यक्रम तो अच्छा था, लेकिन अब नहीं मतलब क्या था प्रोग्राम? क्या था? शादी था? तिलक था। कितने लोग घायल हैं? घायल तो 6-7 आदमी है और 5-6 आदमी डेथ कर गए हैं। अच्छा, कौन सी गाड़ी मारी है? पिकअप जी। तो किधर से आ रही थी पिकअप बैरिया से आ रहे थे, हम लोग बलिया से जा रहे थे। बलिया से बैरिया जा रहे थे? हाँ, बलिया से बैरिया जा रहे थे और बैरिया से वो बलिया आ रही थी पिकअप। अच्छा। तब तक टक्कर मार के पहली जीप को टक्कर मार दिया जी। हम लोग पीछे वाली गाड़ी में थे हम जी। उसमें भी टक्कर मारा। इसमें दूसरी वाली गाड़ी में का आदमी घायल है, कपार फटा है, किसी का डांट पैर टूटा है, कोई का कुछ हुआ है, लेकिन पहले गाड़ी में का 5 आदमी गुजर गए। अच्छा, वहीं डेथ कर गए? हाँ, वही। हम लोग तिलक के लिए गए थे, वहाँ से तिलक चढ़ा कर आ रहे थे, तो सुबह छपरा वहाँ पर पिकअप वाला ने धक्का मार दिया, जो 3 आदमी घायल हो गया है, यहीं पे इलाज चल रहा है। 3 आदमी जी, 3 आदमी वर्षा में और 4 आदमी को रेफर कर दिया गया है बनारस। कितने लोगों की मौत हुई है? 6 आदमी की। ये जनपद बलिया में थाना बैरिया के अंतर्गत बैरिया और हल्दी का बॉर्डर पड़ता है। वहाँ पर रात में 3-3:30 बजे के लगभग एक एक्सीडेंट हो गया। इसमें कुछ लोग दोपटी थाने से एक तिलक का कार्यक्रम अटेंड करके आ रहे थे, 2 मार्शल जीपों में थे, उनके बीच में और एक पिकअप के बीच में एक्सीडेंट हो गया। तो इस एक्सीडेंट में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 बच्चे भी हैं और काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जिनको यहाँ जिला अस्पताल से और BHU के लिए रेफ़र किया गया है। और जो घायल यहाँ पर हैं जिला अस्पताल में हैं या फिर सोनबरसा चिकित्सालय में हैं, उनकी हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं और उनके अच्छे से अच्छे इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। There was on the Balia district jeep accidents. We'll now take a short break. We'll be back with more news. यूनिफॉर्म सिविल कोड
यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना सप्तपुरियों में प्रथम श्री अयोध्या धाम। राम लोक की स्मृतियों में, पर्व से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए। चहुं ओर राम नाम का जय घोष, चौक चौराहे पर श्री राम का प्रतिबिंब, आस्था की पुष्प वर्षा, यत्र तत्र सर्वत्र हर्ष में मगन श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हर क्षेत्र के लोकप्रिय और गणमान्य महानुभाव बने श्री राम उत्सव के साक्षी। विश्व स्तरीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उच्च श्रेणी की ट्रेनों, बेहतर सड़कों एवं लो राइज ईवी बसों ने बनाया सुगम। अटूट आस्था के इस समारोह के कुशल प्रबंधन में श्री राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ जैसे कॉरिडोर ने निभाई उपयोगी भूमिका। श्री राम उत्सव, राष्ट्र की चेतना को नया विस्तार। Welcome back. Heading on to the next news. The Jagdalpur administration is turning to wall murals to beautify the city, and the city, which is also known as Chowk Choraho, is attracting tourists. पार्क चौक हो गया, ये सब बड़े ऐसे चौक है या फिर ऐसे जंक्शन पॉइंट्स है जहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है और शहर की एक सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसी कड़ी में जो हमारा अमागुड़ा चौक हो या फिर चांदनी चौक हो, यहाँ पे हम लोगों ने ट्राइबल कल्चर को बिंबित करने का एक प्रयास जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इसमें कोशिश यही है कि जो हमारे जो लुप्त होती हुई जो कल्चर है या फिर लोगों को इससे बांध के रखने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है उसको हम लोग कर रहे हैं। उसी का एक नतीजा है आज के दिन में चांदनी चौक अलग एक रूप में लोगों को दिखने लगा है। सिमिलर आपका अमागुड़ा चौक भी है। लोगों को संस्कृति से बांध के रखने के लिए और अपने जो एक सांस्कृतिक विरासत है पूरे बस्तर का, बाहर से आने वाले लोगों को भी इसका परिचय देने के उद्देश्य से और ऑब्वियसली जो दीवारों की सुंदरता को बिगड़ाने के लिए इसको किया जा रहा है। 8 months, 6 his daughters went missing and subsequent death report. Kulajit is still awaiting any positive development, and on Tuesday, Kulajit, the father of Lingtoinganbi, who went missing along with her friend Hamjid during the peak of ethnic violence in Manipur, said that 8 months have passed but there has been no lead in finding by the bodies of the two. It may be mentioned that the death of the two went viral on social media platforms and CBI nabbed some suspects in connection with the case. However, dead bodies of the two students are still nowhere to be found. Kulajit expressed his frustration at the fact that no trace of even a single cloth worn by his daughter was found. Kulajit also lamented that the Chief Minister has failed to visit him. When one enters the home of Kulajit in Tera, Imphal West, photographers of Lingtoingambi can be seen everywhere, as many Manipur Legislative Assembly is scheduled to begin from 28, Kulajit Singh have said, but he expects the matter to be echoed in the floor of House.
More than 8 months here, 9 months out of more than 8 months, just 9 months coming up. My daughter dead body is not found. Still, I want to Bhutan killing persons are justice for the justice of my daughter Bhutan killing Luang Bilin. She is not getting till today. Actually, I want to her dead body. If not getting, still I am the social boycott. Social boycott because my daughter is dead. Due to the death, I am not participate any function for the society. How much torture me so far. My expression is very poor on the presentation of English. For this, excuse me, I want to present on my local language. That's all for this bulletin. This is your anchor signing off. People and events that truly matter. For individuals that demand reliable news.